Hello and welcome, dear students. Welcome to the Alliance Educations channel. My name is Mayank Bhadoria, co-founder of Alliance Educations, and I'm here to guide you in the English segment of the General Ability Test for ND examinations. Previously in our lecture series, we have tackled subjects like reading comprehension, and we have studied its tips, what all to expect in the examination, examples, solution methods, and in general we have acquired the ability to properly adapt and explore the reading comprehension section and how you can achieve great amount of marks. Our next segment is that of synonyms and antonyms. This segment is very well appointed in the examination. आपको बहुत बार इसका सामना करना पड़ सकता है. इनका मार्क्स का वेरिएशन डिफर करता है. समटाइम्स इट विल बी वेरी हाई या एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इसके ऊपर आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको आने वाले हैं. Correct? And I guarantee this, that if you ace the section of synonyms and antonyms, not only will you score very well in your examinations, but also your vocabulary will increase, it will get enriched, आपकी language बहुत ज़्यादा flowery हो जाएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को express कर पाओगे और दूसरों को समझना या फिर difficult text को समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा. So there are many benefits to studying this segment with close attention and care. Before we move any further, I'd like to announce that our admissions are currently open for both the classroom and the online programs. You can register yourself by contacting the given numbers on the screen, and the benefits you'll be incurring are tremendous. We'll be giving you the video lectures, the notes and the worksheet PDFs, and for your assessment, there'll be weekly online tests and quizzes. You'll definitely be getting the results immediately so as to actually ascertain कि आपके मार्क्स किस लेवल पे हैं और आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट एक्सेस टू वीकली वेबिनार्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस. We'll also be providing one-on-one online guidance on video calls. Our explanations are short and to the point, which makes them easy to remember, and we'll also be explaining you a lot of short tricks throughout the course. Let's first understand what are synonyms and antonyms. If I ask you the question, what is a synonym? The explanation given on the screen is pretty, easy and बहुत आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत टेक्निकल साउंड करता है, बट फिर भी हम एक बार हम देखेंगे. A synonym of a word is such that it bears similarity to that word in at least one of its meanings. This is a very politically correct definition. It does not have any kind of loopholes to it. Now, अगर हमको लेमैन टर्म्स या फिर बोलचाल की भाषा में इसको समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे? एक सिनोनिम वो शब्द होता है जो किसी किस्म की सिमिलैरिटी बरतता है उसके कुछ मतलब में, जिसमें आप क्वेश्चन वाले वर्ड को रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. द टू एरियाज ऑफ क्वेश्चन आर एटलीस्ट वन ऑफ इट्स मीनिंग्स एंड द वर्ड सिमिलैरिटी. मैथ्स में आप इक्वल टू का सिंबल जानते हो, करेक्ट? अब यहाँ पे जब इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं हो रहा होता है तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू का सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस बॉक्स में, वो यूज करते हैं. वो क्यों यूज किया जाता है? कि जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एक्चुअली इक्वल नहीं, राइट? किसी गिवन शब्द का मतलब आपको अलग अलग चीज़ों से डिराइव अप कर सकते हो, आप अलग अलग सबको समझ सकते हो, बट एक बात तो बहुत सर्टेन है कि हर चीज़ का हर मतलब इक्वल नहीं हो सकता. द इंग्लिश वोकैबुलरी इज एक्सट्रीमली वास्ट एंड देयरफॉर वर्ड्स हैव मेनी एंड वेरी डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड क्लेवर. अब जब मैं किसी को क्लेवर बुलाता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़ाई में बहुत होशियार है. मेरा मतलब ये होता है कि वो पर्सन एक्चुअली चालाक है, या फिर वो चीज़ों से बाहर निकलना जानता है, या फिर वो कॉमन सेंस काफ़ी ज़्यादा रखता है. तो इसलिए हम क्लेवर का सिनोनिम स्टूडियस नहीं मान सकते, पर हम क्लेवर का सिनोनिम इंटेलिजेंट, स्लाई, कनिंग, ये सारे वर्ड्स मान सकते हैं, है ना? सो टू ग्रास्प द एसेंस ऑफ सिनोनिम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर सिमिलर टू द वर्ड, नॉट द सेम. I repeat, they're similar to the word and not the same. This is very crucial from the exam point of view, because आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. Similarly, what is an antonym? An antonym
of a word is such that it bears strong dissimilarity to that word in at least one of its meanings. अब एक शब्द के काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, right? English is a very tricky and a funny language in which one word or one similar sounding word will have varied meanings. This is a separate section जो हम आगे कवर करने वाले हैं, बट जब भी आप ऐसा कोई शब्द देखते हो तो हाँ, ऐसे काफ़ी सारे शब्द रहते हैं जो उस जैसे नहीं है मतलब में, बट उसके ऑपोजिट से काफ़ी मेल खाते हैं. यहाँ हम एग्जाम्पल यूज करते हैं हेट का. Everybody knows that the verb hate has its opposite in the verb love. But इसके antonyms क्या हो सकते हैं? Admire, cherish, revere, etc. इन सब शब्दों का मतलब लव करना नहीं होता. बट फिर भी अगर हम एग्जामिनेशन में hate इस वर्ड को एनकाउंटर करते हैं तो इनमें से कोई एक हमारा डेफिनेटली एंटोनिम हो सकता है. ओके, There's not a mathematical symbol for having an antonym because बहुत बड़ा सेट इंक्लूड हो सकता है इसमें. बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को हमको काउंटर अटैक करना होता है. ओके, मूविंग ऑन. अब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? There are three basic types of questions which you might encounter in the synonyms and antonyms section. Let's see the first part, which is called the regular pattern. रेगुलर पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको या तो सिनोनिम ढूंढना है या एंटोनिम ढूंढना है. क्या ढूंढना है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेट किया जाएगा. यहाँ पे आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है. क्यों? क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक वर्ड है. आपको अगर उस वर्ड का रेफरेंस नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कीजिए. बट आपको अगर वर्ड का थोड़ा सा भी रेफरेंस पता चल जाता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं. नॉर्मली देयर बी 4 ऑप्शंस. हम ऑप्शंस का के ऊपर एक क्वेश्चन डिटेल आपको स्क्रीन पर साइड में दिख ही रहा है. विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन वेरी शॉर्टली. जो सेकेंड पैटर्न होता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो ऐसा है जिसको हम कहते हैं द सेंटेंस पैटर्न. द सेंटेंस पैटर्न consists of basically a sentence in which either a word is highlighted or it's underlined. And 4 options are given, and you are supposed to select the synonym or antonym from the options on the basis of what the word means in that sentence. समझ रहे हैं आप? यहाँ पे मतलब आपको एक वर्ड के साथ में उसका रेफरेंस भी दिया जाता है. Because there's a reference, it becomes a bit easier for you. Correct? And our next segment is, it can be a part of the question of the reading comprehension. हमने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर अटेंड किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसमें वोकैबुलरी के बेस्ड सवाल भी आते हैं जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ सकते हैं. जब ऐसा होता है सो ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज नॉट जस्ट द सेंटेंस बट यू अंडरस्टैंड द एंटायर रेफरेंस बेस्ड ऑन द पैसेज. तो यहाँ पे आपका वोकैबुलरी का नॉलेज उतना टेस्ट नहीं होता जितना सिंगल वर्ड्स में टेस्ट होता है. बट अब ऑब्वियसली वो थोड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर सिर्फ एक वर्ड दिया जा रहा है तो एनडीए का पैटर्न बताता है कि वर्ड शायद थोड़ा सा इजी हो सकता है. बट अगर उसको सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है तो इट इज़ वेरी likely that the options will be very difficult or the word itself will be very difficult, right? तो हमको दोनों तरीके के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पैटर्न वाला सवाल है वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है या फिर उतना अलग पैटर्न में नहीं गिना जाता. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है. अब हर जो क्वेश्चन रहते हैं उसके कुछ ऑप्शंस डिसाइडेड होते हैं कि इतने ऑप्शंस तो रहने वाले हैं. अब इन ऑप्शंस के बेसिस पर मैं आपको एक कॉशनरी टेल बताना चाहता हूँ. कॉशनरी टेल का मतलब है कि आपको उन एग्जाम्पल्स को देखने से पहले उन ऑप्शंस को देखने से पहले, समझने से पहले और अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक होती है. अब ऐसा है कि एनडीए नेगेटिव मार्किंग रखता है अपने पास में और जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, वो लोग ये चाहते हैं कि एक प्रॉपरली उनके स्ट्रेंथ को, उनके इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए. इसीलिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हर कदम पे की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ऑप्शन कैसा रहेगा जो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन का एक वर्ड है, क्वेश्चन का जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग से मिलते जुलते काफ़ी सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे. अब ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड उस वर्ड का सिनोनिम होगा
जो आपके क्वेश्चन वाले वर्ड से सिमिलैरिटी स्पेलिंग में रखता है, राइट? हम आगे वैसे किस्म का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, देन इट विल बिकम अ बिट मोर क्लियर टू यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप ऐसे किसी ऑप्शन को देखते हो तो ट्रिपल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड डेवलप होगी। और एक ऑप्शन जो होगा वो उस गिवन वर्ड का एंटोनिम होगा अगर सवाल जो सिनोनिम्स का है तो, और अगर जो सवाल एंटोनिम ढूंढने के लिए बोला गया है तो ऑप्शंस में एक सिनोनिम हो सकता है। ये क्यों किया जाता है? ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स इंसान का ये होता है कि जब भी आप कोई वर्ड को देखते हो तो आपको उसका सिनोनिम ढूंढने या उसकी सिमिलैरिटी ढूंढना आपके लिए आसान होता है। तो अगर जो आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं सीखे या फिर आपने क्रॉस चेक नहीं किया तो आप इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे, इनकरेक्ट ऑप्शन को सबमिट कर दोगे, और ऐसा करने पे आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए इस कन्फ्यूजन को बढ़ाने के लिए एनडीए ऐसे पेपर सेट करता है, बट हमको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस चीज़ का है और हमको उस हिसाब से उसके पर्टिकुलर जो आंसर है उसी को तलाशना है। एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो कोई रैंडम वर्ड होगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया होगा। ये रैंडम वर्ड उतना भी रैंडम नहीं होता, बट यू नो इट कैन बी दैट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग इट कैन बी मिसलीडिंग। उसका मीनिंग जो है हो सकता है वो सिनोनिम के बहुत पास में हो, या फिर उसका जो सेंटेंस में एप्लीकेशन होता है वो सिमिलर हो सकता है। बट इन सब से हमको डरना नहीं है। जो चौथा ऑप्शन होता है वो सीरियस ऑप्शन होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है, हमको उसी ऑप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना हो। नाउ योर गोल शुड बी सॉल्विंग दिस इन 20 seconds. If you practice, and I have prepared a synonyms and antonyms worksheet for all of you. If you go through that, enhance your vocabulary repeatedly, तो एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि एक्चुअली आप इस सवाल को 20 seconds में सॉल्व कर सकते हो, एंड विद अ वेरी रिच vocabulary you can solve it in even lesser. Now here are a few tips to ace the synonyms and antonyms question. First is, and I cannot stress this point enough, that there is absolutely no shortcut to a very rich vocabulary. आपको आपकी vocabulary को increase करना पड़ेगा ही. It's a very important tool जो आपको lifelong काम में आने वाला है, right? So increasing vocabulary is the best tool you can have against the predicament of synonyms and antonyms. Second tip is, read the question very carefully. क्वेश्चन स्टेटमेंट में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डायरेक्टली मेंशन हो ये ज़रूरी नहीं है। वो ऐसे फ्रेजेस का यूज़ काफ़ी बार करते हैं जिसमें लिखा होता है मोस्ट सिमिलर या फिर मोस्ट डिसिमिलर। अगर ऐसा आपको कभी ध्यान में आता है दैट दे हैव यूज्ड सच काइंड ऑफ वर्ड्स, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली बिकॉज आप एक टाइम लिमिट पे होते हो, तो कंफ्यूज होना, कभी गलती से गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, एक क्वेश्चन को गलत समझना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बीइंग स्लो इन दिस रिगार्ड विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेसिकली यू विल बी एक्टिंग फास्ट बाय टेकिंग योर टाइम टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड टू असेस कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास में एग्जाम्पल्स है, इसमें 2-3 चीज़ें मैंने मेंशन की है आउट ऑफ द पॉइंट्स, विल गेट टू दैट। अगर आप जो क्वेश्चन फेस कर रहे हैं वो सेंटेंस पैटर्न का है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक सेंटेंस की आइडिया समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वो सेंटेंस किस लिए बोला जा रहा है, उस सेंटेंस में उस वर्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी शब्द का मतलब उतने क्लियरली नहीं पता, फिर भी अगर आप सेंटेंस का मतलब समझ गए, उस सेंटेंस का मतलब आप गेज कर पाए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसका सिनोनिम या एंटोनिम तलाश करना। अगर एंटोनिम्स है तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वी हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिमिलर वर्ड। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ ऑप्शन जिसमें जो क्वेश्चन में पूछे गए शब्द से थोड़े बहुत अलग तो होंगे ही, बट हमें वो शब्द सेलेक्ट करना है जो एकदम ही डिसिमिलर हो, राइट? तो जिस ऑप्शन की कैटेगरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, हमें उसी को अपना आंसर चुनना है। ऑप्शन डिसिमिलर हो सकते हैं बट वो करेक्ट नहीं हो सकते, करेक्ट ऑप्शन एक ही होगा, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिमिलर वर्ड इन केस ऑफ एंटोनिम्स। हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी सजेस्टिव बाय द नेम इटसेल्फ। व्हाट यू सपोज टू डू इज बेसिकली अंडरस्टैंड कि आपको एक एक पॉसिबल ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है कि भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता।
अगर आपका वोकेबलरी का नॉलेज मिनिमल होगा तो आप गेस वर्क करने के लिए एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आप समझ सकते हो कि इफ दिस आई नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दिस कैन नॉट बी दैट, इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ, उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ. बट आई रिपीट, अगर आपका ये पूरा जो एलिमिनेशन मेथड से रिजल्ट आपका 75% नहीं आता, मतलब आप एटलीस्ट 3 वर्ड्स को निगेट नहीं कर सकते कि ये आपके आंसर्स नहीं हो सकते, तब तक आप उस पॉसिबल गेस, उस पॉसिबल फोर्थ आंसर को अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर्स को बहुत इफेक्ट कर सकता है. सो द गोल्डन मार्क इज 75%. 3 options are to be eliminated at least. Otherwise, it's just not worth the risk. A very important tip which I myself have found very useful is you have to learn at least 5 words a day. और when you learn 5 words a day तो उसका मतलब कैसा होता है कि हम उसका यूजेज भी सीखेंगे, सिनोनिम्स भी सीखेंगे, उसके एंटोनिम्स भी सीखेंगे, और इफ पॉसिबल उसके होमोनिम्स भी अगर हम जान ले तो हमारे लिए बेटर होता है, राइट? इससे ना सिर्फ हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, मैंने आपको सबसे पहले बोला भी था, लैंग्वेज तो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बट साथ ही साथ एक और चीज़ हो जाती है कि हम एग्जाम में भी क्लियरेंस कर सकते हैं. एंड वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, वेन एवर यू आर सपोज टू राइट एनीथिंग, आपको उस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. नाउ लेट्स टैकल अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. द वर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू कॉन्फिडेंट. ओके, द वर्ड जिसमें हमको मोस्ट सिमिलर यानी कि हमको जिसका सिनोनिम ढूंढना है वो वर्ड है कॉन्फिडेंट. इसके ऑप्शन है एडवाइजर, वाइज, ट्रस्टवर्दी एंड सेल्फ अश्योर्ड. ओके, अभी मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शंस का जो हम डिलेमा फेस कर रहे थे उसमें हम कैसे टैकल कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड भी यूज करूंगा और एट द सेम टाइम आई विल आल्सो बी फैमिलियराइजिंग यू विद द ऑप्शन ट्रैप. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एडवाइजर. कॉन्फिडेंट का बेसिक मतलब होता है समबडी जिसके पास में आप जाके आपकी चीजें, आपके सीक्रेट्स बोल पाओ, जिस पर्सन पे आप भरोसा करते हो, जिस पर्सन से आप चीजें शेयर कर सकते हो, दैट पर्सन बिकम्स कॉन्फिडेंट. ओके, नाउ एडवाइजर इज वेरी सिमिलर. अब एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंट और एडवाइजर स्लाइटली सिमिलर हो सकता है, बट ये सिनोनिम नहीं है. इट्स नॉट एन आंसर, बिकॉज एडवाइजर इज अ पर्सन जो आपको एडवाइस देता है, और कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन जिसमें आप चीजें शेयर करते हो ताकि वो आपको एडवाइस दे. दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमारे आने वाले ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शन हो सकता है. अ सेकेंड ऑप्शन इज वाइज. वाइज का मतलब होता है समझदार. समझदार और कॉन्फिडेंट डोंट मैच टू ईच अदर, सो दैट्स नॉट आवर आंसर फॉर श्योर. ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक रैंडम ऑप्शन दिया गया है. ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है जिस पे भरोसा किया जा सके, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो इंसान जिस पे आप भरोसा करके उनसे चीजें शेयर कर रहे हो. करेक्ट. सो अभी तक ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर बेस्ट पॉसिबल बेट, एंड वील मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी से सेल्फ अश्योर्ड. सेल्फ अश्योर्ड का मतलब होता है somebody जो अपने आप में काफी भरोसा रखता है खुद पे कि ओके हाँ आई कैन डू दिस. सो बेसिकली यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कैसे की गई है. द वर्ड कॉन्फिडेंट इज सिमिलर टू द वर्ड कॉन्फिडेंट. सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. तो हो सकता है कोई गलती से जल्दी में सेल्फ अश्योर्ड आंसर सेलेक्ट कर ले और अपने मार्क्स खो बैठे. तो हमको प्रॉपरली चेक करना है कि ऑप्शंस के लिए हमारे पास में ट्रैप्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आई नेम सी ट्रस्टवर्दी एज माई करेक्ट आंसर. क्लियर. एन एग्जाम्पल नंबर, आर एग्जाम्पल नंबर 2 इज दैट ऑफ एंटोनिम्स, और उसमें स्टेटमेंट कैसे दिया है, फाइंड द वर्ड मोस्ट डिसिमिलर टू द अंडरलाइंड वर्ड. यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक वर्ड या तो हाईलाइट किया जाएगा या अंडरलाइन किया जाएगा, और हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, मतलब ऑपोजिट. द सेंटेंस इज ही कन्फेस्ड हिज क्राइम्स टू द जज. ऑप्शंस आर addressed, suppressed, stressed and disclosed. नाउ कन्फेस्ड अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है अपनी चीजें मान लेना, राइट? टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू हैव डन और एक्सेप्ट समथिंग दैट यू हैव बीन फीलिंग और थिंकिंग, दैट इज अ कन्फेशन. ओके, अब यहाँ पे हम सेंटेंस से भी थोड़ा सा अंदाजा गेज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब. ही कन्फेस हिज क्राइम्स टू द जज, मतलब उसने जज के सामने अपनी गलती कबूल कर ली. ऑप्शंस में दिया गया है एड्रेस्ड, सप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड डिस्क्लोज्ड.
आई स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर डी. डिस्क्लोज्ड मीन्स कि किसी चीज़ के ऊपर से पर्दाफाश कर दिया या फिर किसी चीज़ को बता दिया कि ऐसा है. अब कन्फेस करना और डिस्क्लोज करना ये दोनों सिमिलर हैं. मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए एंटोनिम्स के सवाल में एक ऑप्शन नंबर डी डिस्क्लोज सिनोनिम प्रेजेंट है. आप डी को ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते. हम बाकी के 3 देखते हैं. ए ऑप्शन सेज एड्रेस्ड. एड्रेस्ड करने का मतलब होता है, इसके 2-3 मतलब होते हैं. एक होता है किसी पर्सन को कोई लेटर एड्रेस करना ताकि उनके पास पहुंचे. एंड सेकंड है संबोधित करना. संबोधित का मतलब होता है किसी को रेफरेंस मान के, किसी की तरफ देख के या उनके लिए कुछ चीज़ बोलना. अब द गाय, ही जो हमारा प्रोनाउन है, ही कन्फेस हिज क्राइम्स टू द जज. उसने जज की तरफ देख के बोला, बट हम एड्रेस यहाँ पे आंसर नहीं मान सकते आपको कंफ्यूज करने के लिए. राइट. स्ट्रेस्ड ऑप्शन नंबर सी का मतलब होता है जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है. सो बाय डिफॉल्ट द करेक्ट आंसर बिकम्स बी सप्रेस. सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करके कि आप उस चीज़ के बारे में कुछ बोलो ना. कन्फेशन का एंटोनिम होता है सप्रेशन. तो कन्फेस का एंटोनिम हुआ यहाँ पे सप्रेस्ड. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सच वर्कशीट्स जिसमें आंसर्स भी आपको दिए हुए रहेंगे. वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करने से आपका टाइम लिमिट जो 20 सेकेंड्स का हमने मेंशन किया था वो कम होता जाएगा. आप एक्चुअली उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी होगी. See, whenever you tackle a question of synonyms and antonyms, it's going to be very important. अगर आपको शब्द नहीं पता तो make sure that you go and check the meaning of all the 5 words, the question and the answers given. उनका यूसेज कहाँ होता है, किस चीज़ के लिए होता है, ये सब आप चेक करेंगे. करेक्ट? I'm not giving you any homework for this assignment because there's a worksheet prepared. You can hit us up on the given contact numbers or our email ID or any of our social media handles for the required worksheet and lecture PDF. Admissions are currently open for both the classroom and online programs. So I'd actually ask you to register yourself on the given numbers as soon as possible. You can also take a screenshot of this story with the hashtag Digital Alliance, and we'll be mentioning you and giving you a shout out on our social media handles. Our contact details are given on the screen, and if you want the lecture PDF, kindly let us know. In the end, please don't forget to show us your support by hitting the like button. Also subscribe to the channel of Alliance Educations and hit the bell icon for timely updates. Thanks for watching.